علامہ محمد راشد مدنی حمادی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأن محمد رسول عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے توحید باری تعالی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے اہل ایمان پر جو عمل فرض کیا گیا ہے، جو عبادت فرض کی گئی ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نماز کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بیان فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت بڑی تعداد میں ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، آج کے دور کے اندر ہماری پریشانیوں اور مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے دوست آتے ہیں کہ جناب میرے روزگار کے اندر بندش کر دی گئی ہے، کاروبار میں بندش ہے، ہماری بیٹی کے رشتے پر بندش کر دی گئی ہے، زمیندارے میں بندش ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہم مختلف عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں، اگر تو کسی سچے اور صحیح قرآن و سنت کے مطابق عملیات کے ماہر کے پاس گئے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں مختلف قسم سے مسلمانوں کے مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر لوٹا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو عمل اور جو وظیفہ بتائیں گے، یقیناً اس سے زیادہ مضبوط اور مفید کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت میں 2 چیزوں کا حکم بیان فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تم اللہ کی مدد طلب کرو۔ ظاہر ہے دنیا میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، ایک ایمان والے کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتھر بھی نہیں ہلتا، درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا گرتا درخت سے، دنیا کے ہر کام کے اندر اللہ کا حکم جاری ہے، ہر دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تو پھر میرا آپ کا کاروبار، بچوں بچیوں کے رشتے یا دوسری چیزیں، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو؟ اس لیے سب سے بہترین عمل ہے، اگر آپ پریشان ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، یا کسی بھی قسم کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تو اس کا بہترین حل ہے
वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ताला की मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। सब्र क्या है? सब्र है अल्लाह ताला की मना की हुई चीजों से रुक जाना। अल्लाह ताला ने झूठ बोलने से मना किया, आप झूठ न बोलें। अल्लाह ताला ने हराम खाने से मना किया, आप हराम खाने से रुक जाएं। अल्लाह ताला ने जिना से मना किया, आप जिना से रुक जाएं। अल्लाह ताला ने सूद से मना किया, आप सूद से रुक जाएं। अल्लाह ताला ने गालम गलूज से मना किया, आप गालम गलूज से रुक जाएं। अल्लाह ताला ने रिश्वत से मना किया है, आप रिश्वत से रुक जाएं। अल्लाह ताला ने किसी को धोखा देने से मना किया है, उससे रुक जाएं। अल्लाह ताला ने अमानत के अंदर खयानत करने से मना किया है, उससे रुक जाएं। अब ये अमानत में खयानत, इसकी बहुत बड़ी तफसील है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी और मौके पर इसकी तफसील को बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी के हक पर डाका डालने से मना किया है, हम नहीं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी मुसलमान को तकलीफ देने से मना किया है, हम न करें। अब अगर एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन गालियां देता है, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन सूद खाता है, अल्लाह की मदद नहीं आएगी, उसकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। एक शख्स 5 वक्त का नमाजी है लेकिन रिश्वत भी लेता है, कभी भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी, उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। एक शख्स है कारोबार करता है, 5 वक्त का नमाजी है लेकिन तिजारत के अंदर डंडी मारता है, ग्राहकों से झूठ बोलता है, धोखा करता है, गलत बयानी से माल को बेचता है, तो अल्लाह ताला की मना की हुई चीज से नहीं रुका, सब्र नहीं किया इसने, इसलिए इस पर अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी और इसकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। इसी तरह एक शख्स अमानतदार है, झूठ नहीं बोलता, गीबत नहीं करता, तोहमत नहीं लगाता, खयानत नहीं करता, कोई भी चीज बुरी नहीं करता, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, फिर भी मदद नहीं आएगी अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की मदद के लिए, परेशानियों के खात्मे के लिए अल्लाह की मदद चाहिए, रिज्क में बरकत के लिए अल्लाह की मदद चाहिए, औलाद के नेक होने के लिए अल्लाह की मदद चाहिए, औलाद के रिश्तों के लिए अल्लाह की मदद चाहिए, तो 2 काम करना लाजमी है। एक सब्र, यानी जिसकी मैं तफसील बयान कर चुका। सब्र क्या है कि अल्लाह के रसूल की मना की हुई चीजों से अपने आप को रोक लेना। सब्र के माना रुक जाना, तो अल्लाह और अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुक जाना, और उसके बाद फिर नमाज। अब आइए नमाज की तरफ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं पर भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। यह नहीं फरमाया कि सल्लु सलाह, नमाज पढ़ो, बल्कि क्या फरमाया, अकीमुस सलाह, नमाज को कायम करो। कायम करने और पढ़ने में फर्क है। हमारी अक्सरियत सिर्फ नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ना क्या है? वुजू अपनी मर्जी से कर लिया, रुकू सजदे मुख्तसर अपनी मर्जी से कर लिए, क़याम अपनी मर्जी से कर लिया, जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ ली, नमाज में सुन्नत और मुस्तहबात का ख्याल नहीं रखा, और जमात की नमाज पढ़ने लगे हैं तो सफ बंदी का ख्याल नहीं रखा। ठीक है ना जी? तो नमाज तो पढ़ ली, लेकिन उसमें सुन्नतों का, मुस्तहबात का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया, फराइज और वाजिबात का ख्याल नहीं रखा गया। यह है नमाज पढ़ना। कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी। नमाज कायम करने का मतलब क्या है? कायम, जैसे ये सीधी कायम है, इसके अंदर कोई भी टेढ़ापन नहीं है। नमाज इसी तरह कायम हो, उसके अंदर सुन्नत की खिलाफ वर्जी का टेढ़ापन न हो, उसके अंदर मुस्तहबात की तोड़ न हो, उसके अंदर वक्त की पाबंदी के खिलाफ वर्जी न हो, उसके अंदर जमात में नमाज खिलाफ सुन्नत खड़े होने का तोड़ न हो, बल्कि सुन्नत के मुताबिक वुजू हो, सुन्नत के मुताबिक मस्जिद के अंदर दाखिल होना हो, सुन्नत के मुताबिक सफ़ों का क़याम हो, और सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल नमाज हो, फिर तो ये नमाज होगी। और सुन्नत के मुताबिक नमाज की सबसे पहली शर्त ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज तुम इस तरह पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर इस तरह तुम इस कदर इन्हमात खुशू नहीं पैदा कर सकते, तो कम दर्जा खुशू का ये है कि तुम इतना तसव्वुर कर लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं। अल्लाह के देखने में और बंदे के देखने में बड़ा फर्क है। चोर
वहां चोरी करता है जहां पर कोई पुलिस वाला, कोई पहरेदार, चौकीदार न हो। ठीक है ना जी, क्योंकि चौकीदार जाहिरी तौर पर देखेगा कि ये चोर चोरी करने के लिए जा रहा है। ठीक है ना, जब चोरी करेगा तो चोरी करते हुए देखेगा, लेकिन कोई चोर चौकीदार के सामने जाए चोरी की नीयत से, जब तक वो चोरी नहीं करेगा चौकीदार को पता नहीं चलेगा ये किस नीयत से जा रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ जाहिर को नहीं, हमारे बातिन को भी देखते हैं। खड़े हैं हम अल्लाह के सामने, पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ रहे हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, पढ़ रहे हैं वद्दुहा, लेकिन हमारा ध्यान है दुकान की तरफ, हमारा ध्यान है कारोबार की तरफ, हमारा ध्यान है औलाद की तरफ, घर बार की तरफ, दुनिया के मसाइल की तरफ। तो दुनिया में इंसान जो देखेगा वो तो यही कहेगा कि ये नमाज में खड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह जो देख रहे हैं वो हमारे दिल और दिमाग को देख रहे हैं कि ये बदबख्त नमाज में नहीं खड़ा हुआ है, ये खड़ा मेरे सामने, इसका दिल और दिमाग कहीं और पर है। तो ये भी नमाज पढ़ना है, नमाज कायम करना मुकम्मल तवज्जो के साथ। अल्लाह भी देखें कि मेरा बंदा मुकम्मल मेरी तरफ मुतवज्जे है। नमाज पढ़ी जाएगी, इस तरीके के साथ नमाज पढ़ेंगे और इस तरीके के साथ मनहियात से खुद को रोकेंगे तो फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी। नमाज के मुतालिक एक और हदीस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन फज़ा इला सलाह। हज़रत हुज़ैफा फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बहुत परेशानी में मुब्तला होते, कोई सख्त अमर पेश आ जाता था, कोई मुश्किल पेश आ जाती थी, तो फरमाया कि फज़ा इला सलाह, तो नमाज की तरफ चल पड़ते थे, नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। मतलब हम किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुश्किल में हो, तो सबसे पहले नमाज की तरफ मुतवज्जे हों। रिस्क में तंगी है, आमिरों के चक्कर में पढ़ने की बजाय, विर्द वज़ाइफ की बजाय अल्लाह ताला की तरफ नमाज सबसे बेहतरीन विर्द नमाज है, सबसे बेहतरीन जिक्र नमाज है, सबसे बेहतरीन जो है वो हाजत मांगने का रास्ता नमाज है। शर्त यह है कि हम यकीन के साथ मांगें, अल्लाह से यकीन के साथ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन छोटे छोटे मामलात में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से नमाज पढ़कर दुआएं करते थे, तो इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। हमारे यहाँ तो आजकल नमाजों के बाद दुआओं का रवाज ही नहीं है, न मौलवी हजरात, इमाम हजरात दुआएं कराते हैं, बस सलाम फेरा, अल्लाहुम्मा अंत सलाम उनका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जाओ जा। दुआओं में इन्हिमाक होना चाहिए। और जाहिर है जैसे हम मौलवी दुआएं कराएंगे तो मुक़्तदी भी वही सीखेंगे। उलमा इकराम अइम्मा का हजरात का काम है अपने मुक़्तदियों को इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ दुआओं का एहतिमाम कराएं, और जैसे कराएंगे मुक़्तदी भी वैसे ही होंगे। हमने बहुत सारे ऐसे अइम्मा देखे हैं जो पूरे इन्हिमाक के साथ दुआएं कराते हैं, नमाज के बाद मुक़्तदी सारे के सारे बैठे हुए दुआएं कर रहे होते हैं। और बाज़ अम्मा अल्लाहुम्मा अंत सलाम उनका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जा वो जा, तो मुक़्तदी उससे ज़्यादा तेज भागने में होते हैं। तो नमाज में नमाज के बाद दुआओं का एहतिमाम, अल्लाह ताला से मांगें, तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा, सबसे बेहतरीन वजीफ़ा अल्लाह ताला की मेहरबानियों को, अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की मदद को अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जे करने का यही है। दो काम करें, एक नमाज का एहतिमाम करें, दूसरा मनहियात से जो है वो बाज आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ हमने कहा अल्लाह ताला मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाना मिनटन जो